Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying well. Okay. Now, today in this video of class 9 biology, we'll be moving further ahead with the chapter tissue. Now, as we have gone through the various types of plants tissues and their functions, we have even started the animal tissue. So now today we'll start with the characteristics and the types of epithelium. Now, what were the characteristics that we studied in the last video? We studied that they are in a form of a continuous sheet. They are closely packed and are in a form of continuous sheet. They have almost no intercellular space between them. वो शीट के फॉर्म में होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच का कोई भी स्पेस नहीं होता है. ठीक है. We studied about its characteristics. Also we studied about its functions, like it act as a protective tissue, okay, and helps to prevent mechanical injury. किसी भी टाइप का इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. सेल्स को ड्राइंग अप से सूखने से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. जर्म्स के एंट्री से प्रोटेक्ट करता है. साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन में हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो ओके. जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में होते हैं वो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. ओके. एल्वियोलाई में जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. और साथ ही साथ जो नेफ्रॉन्स में होते हैं दे आर यूजफुल इन हेल्प इन elimination of waste product. So these were the characteristics and function of the epithelial tissues. Now today in this video we will start with the term types of epithelium. Okay, we will see what are the different types of epithelium, what are its function and where are they found. We will see about these things. Now based on the structure and organization of the component cells, the epithelial tissue may be classified as कैसा है उनका स्ट्रक्चर और कैसे वो अरेंज्ड हैं, इसके बेसिस पे आपका जो एपिथेलियम होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, इट इज़ स्क्वैमस एपिथेलियम. सेकेंड इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो कॉलम के फॉर्म में होता है. क्यूबोइडल एपिथेलियम जो क्यूब के शेप में होता है. और लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स के रूप में एक्ट करता है. These are the 4 types of epithelial tissues. Okay. Now let's see one by one all of 4 of them. First is squamous epithelium. ये क्या होते हैं? Squamous epithelium क्या होता है आपका squamous epithelium. It is formed of thin, flat, irregular shaped cells which fit together like tiles in a mosaic floor. आप देख सकते हो thin होते हैं, ये पतला होते हैं. Clearly here you can see it's a thin, okay, flat, चौड़ा होते हैं and irregular shaped. Each one of them you can see it has got no fixed shape. Irregularity, there is always a irregularity in its shape. So it is a thin, flat, irregular shaped cells. Okay, it is thin, flat and irregular shaped cells which fit together like tiles in a mosaic floor. They are fitted together, they are kept together or they are present together just like a tiles are present in the floors. Okay, it is in the same way. Clearly here you can see that their shape is quite irregular. They have not got any fixed shape. Okay, they are even flat and they are thinner. Okay. Now next let's see where are they found, what are their occurrence of squamous epithelium, which are the places where they are found. It forms the delicate lining of mouth. In our mouth, it is found in our mouth. Esophagus, that is esophagus को और क्या बोलते हैं हम लोग? Food pipe. Where it is found? Esophagus. Nose, pericardium. Pericardium, cardium कहाँ से related है आपका? Heart से related है. Alveoli, alveoli कहाँ है आपका present? Lungs में. Okay. And of blood vessels in skin. So these squamous epithelium they are found at such places where in mouth, inner lining of our mouth. Next is esophagus that we call as
food pipe which helps in carrying food from mouth to stomach through peristalsis or peristaltic movement. Okay. Next is nose. Next, pericardium, outer covering of heart, alveoli and our blood vessels and skin. Okay. Now what is the function of squamous epithelium? अभी तो हमको पता चला कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं. अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है हमारे बॉडी में. What is its role in our body? First is it protects the underlying parts of body from mechanical injury, entry of germs, chemicals and drying. ये जो हमारा अंडरलाइंग पार्ट्स हैं, जो पार्ट अंदर में होते हैं, इनर पार्ट्स जो हैं, उनको मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म्स से और केमिकल्स और ड्राइंग अप, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम केमिकल्स दैट माइट फॉल ऑन आवर बॉडी. ये आउटर सरफेस, आउटर बाउंड्री के रूप में एक्ट करता है. ठीक है. सेल्स, अंदर वाले सेल्स को ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, सूखने नहीं देता है. एंट्री ऑफ जर्म्स को प्रिवेंट करता है, जर्म्स को अंदर नहीं जाने देता है. सो इन दिस वे इट इज़ यूजफुल टू अस. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर्स. नाउ यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ alveoli. What happens here? There is an exchange of gases. Okay, so useful materials gets inside and harmful one they are exhaled out. So here it works as a sort of filtering substance, or it helps in filtration. Or you can say in your nose, what happens? Hairs are present, so there is also filtration of air that enters inside the nose. So this squamous epithelium, it also acts as a semi-permeable membrane through which filtration occurs. अब आपसे कोई पूछे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो दे आर द वन दैट अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस, कुछ ही सब्सटेंस को अपने थ्रू आने जाने देते हैं. ओके. ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस को अपने से बाहर जाने देते हैं और ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस को अपने थ्रू अंदर आने देते हैं. ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. इनका टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स के स्क्वामस एपिथेलियम है? पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स दैट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग एंड एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये थिन होते हैं, सिंपल है, इट इज थिन, it acts as a thin outer covering. Okay, it protects the delicate inner lining or protect the delicate inner part of our body. Okay, and it even acts as a selectively permeable membrane. Where it is found? It is found in blood vessels and alveoli of lungs. कहाँ मिलते हैं? ब्लड वेसल्स में मिलते हैं और alveoli of lungs. ये दो जगह पे हमारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलते हैं. नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रैटा? स्ट्रैटा मीन्स लेयर्स. ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मीन्स विच आर प्रेजेंट इन लेयर्स. वो स्क्वामस एपिथेलियम, वो आउटर प्रोटेक्टिंग पार्ट जो लेयर्स में प्रेजेंट हो. ठीक है, स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? लेयर्स. सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स. स्ट्रैटिफाइड किस फॉर्म में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लेयर्स. क्लियर? एग्जाम्पल है आपका स्किन. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी सेकंड, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. यू कैन क्लियरली सी हियर कॉलम. सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पिलर. पिलर को हम लोग और क्या बोलते हैं? इन आवर लैंग्वेज वी कॉल कॉलम. So this columnar epithelium is in a form of column. It acts as a column. It is formed of tall pillar-like cells lying side by side, which are taller than broader. Clearly आप देख सकते हो, it is more taller than it is broader. इसका जो width है वो length से कम होता है. आप अपने घर का पिलर देखते हो, so it is longer. It is not that wider. जितना उसका लेंथ होता है उससे वाइड वो नहीं होता है. It is longer then what is its width.
यानी विड्थ उनका कम होता है और लेंथ ज़्यादा होता है। क्लियर? सो ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो है उनका कुछ स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो पिलर के फॉर्म में होता है, जिनका लेंथ ज़्यादा होता है और विड्थ कम होता है। ठीक है। देयर न्यूक्लियाई लाइज इन द बेसल पार्ट, और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस के क्लोज में होता है। ये हमारा बेस है, इसके क्लोज में न्यूक्लियाई है। ओके, सो इट्स न्यूक्लियाई लाइज इन द बेसल पार्ट मीन्स इट लाइज क्लोज टू द बेस। ये बेस है, इसके क्लोज में हमारा न्यूक्लियाई है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स से फर्दर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, वहीं पे हम लोगों ने एक देखा था सिलिएटेड एपिथेलियम या सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये क्या होते हैं? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल्स कॉल्ड सीलिया। अब जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होते हैं, देखो आप यहाँ पे कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का ये टिश्यू है, इस पे ऊपर में हेयर लाइक सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। These are called as cilia. They are hair-like projection that are present on the outer surface of the cells. Now these cilia can move and push the mucus forward to clear it of any unwanted particle. और ये cilia जो है वो move कर सकता है. It can move. It has got locomotive power, so it can move and it will clear if any unwanted particle comes in its path. Now suppose a brush is moving forward and backward, okay, it's moving in such a way, so any particle that would come in its path will be thrown away. Okay, so in similar way this cilia helps in moving out of the unwanted particle that comes in its path. Okay, so this is also known as ciliated columnar epithelium. इनको क्या हम लोग बोलते हैं? ciliated columnar epithelium. कहाँ मिलते हैं ये? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे क्या मिलते हैं? हमारे सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्यों? टू अवॉइड द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स के एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स के एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ पे। इट इज़ फाउंड इन ऑर्गन्स वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर्स like inner lining of small intestine, stomach and mucous membrane. और ये जो हमारा ये columnar epithelium जो है, okay, this is the one where columnar epithelium is found. It is the place where columnar epithelium are found. This is for columnar epithelium. ये organ में columnar epithelium मिलते हैं। ठीक है। It is mainly found in organs where absorption and secretion occurs like inner lining of small intestine, stomach, mucous membrane, etc. So these are the places where columnar epithelium is found. Columnar epithelium हम लोगों को कहाँ मिलता है? It is present in a place where absorption and secretion occurs. जहाँ से absorption होता है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ secrete होते हैं। कहाँ पे होता है आपका? Small intestine का inner lining में, stomach में, म्यूकॉस मेम्ब्रेन में, यहाँ पे क्या मिलते हैं? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मिलते हैं। क्लियर? लेट्स सी फर्दर द थर्ड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, नाउ एज द नेम सजेस्ट इट इज इन द शेप ऑफ क्यूब। ओके, इट इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर्स पॉलीगनल। ये स्क्वायर शेप में होते हैं बट जो ऊपर का सरफेस जो होता है वो पॉलीगनल होता है। इट हैज़ गॉट नो फिक्स शेप। हियर यू कैन क्लियरली सी, हियर यू विल सी सम अदर शेप, हियर यू आर गेटिंग सम अदर शेप्स। ओके, सो इट हैज़ गॉट polygonal shape, or you can say a sort of hexagonal shape that promotes towards the hexagonal shape. So cuboidal epithelium, it is made up of cube like cells which are square in section. In section they are square, it is somewhat in the shape of a square but appears polygonal. Okay, their nuclei is in the center of the cell. और इनका जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इनका न्यूक्लियाई सेंटर ऑफ द सेल्स में होते हैं, जबकि जो हमारे कॉल्यूमिनर एपिथेलियम थे उनका न्यूक्लियाई बेसल पार्ट में होता था, बेस में होता था. इट वॉज क्लोज टू बेस. फॉर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, फॉर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम it was in the base, but for cuboidal epithelium it is in the center, it is near about in the center. Okay,
ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये कहाँ मिलते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके, नेफ्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट आर देयर, वहाँ पे मिलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं, ओके, वेयर एंड ऑल्सो इट्स मेन फंक्शन इज और इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दोज ऑर्गन्स और दोज पार्ट्स, ओके। लेट्स सी द लास्ट वन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्या होते हैं? ऑफन एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम क्या है? सिक्रीशन, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स? मेनली दे आर रिलेटेड विथ सिक्रीशन। सो ऑफन एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ग्लैंड्स विच कैन सिक्रेट सब्सटेंसेज एट एपिथेलियल सरफेस। और ये क्या करते हैं? ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशन करते हैं कहाँ पे? एपिथेलियल सरफेस पे। At the epithelial surface, they secrete something. Sometimes a portion of epithelial tissue folds inwards and multicellular gland is formed. This is called as glandular epithelium. और कई बार ऐसा होता है कि जो epithelial tissues जो हैं वो fold करते हैं और fold करके एक glands के रूप में form कर जाते हैं, okay, and this is called as what? Glandular epithelium. This forms glandular epithelium, okay. You can clearly see here these are the secretory units and this is made up of glandular epithelium. यहाँ से secretion आपका epithelial का जो upper part है epithelial surface पे हो रहा है, ठीक है। So these are the sort of glandular epithelium, okay. I hope everything has been explained to you in a proper way. Please go through your books at least once, NCERT, okay. That's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.